पहली बात तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है, तभी तो आपको आईवीएफ पे जाना पड़ रहा है ना। बट इसके बहुत सारे पीछे के कारण हैं जिनको हर केस अलग है। सो आपके केस में पर्टिकुलर क्या सिचुएशन है ये देखना बहुत जरूरी है। आई हैव डन केसेस वेयर वी हैव नॉट गिवन एनी एनेस्थीसिया एंड द पिकअप इज डन विदाउट गिविंग एनी एनेस्थीसिया। सो आईवीएफ का मतलब सिर्फ ये है कि बाहर एग निकाला, एम्ब्रियो बनाया और उसको अंदर डाला। इक्सी का मतलब ये है कि एग लिया, उसमें स्पर्म डाला, एम्ब्रियो बनाया और वापस ट्रांसफर किया। Namaskar, welcome to another brand new episode of Aware Health Talks because she deserves the best. So, today we have a very renowned IVF specialist, a very senior IVF specialist rather, who's having an experience of more than 2 decades, if I say. So, पहले तो मैं welcome करूँगी मैम आपको on our show. To proceed with this show, I would like to have certain questions with ma'am first. Ma'am, बहुत सारे myths हैं related to IVF, and you are the one who is an expert on this. बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है इनफर्टाइल कपल्स के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि आईवीएफ है तो बेबी सक्सेसफुल, मतलब आईवीएफ का रेट सक्सेसफुल होगा और बेबी होगा ही होगा। So when we talk about IVF, we need to understand that each human being is different. हर एक का शरीर अलग है, हर एक का रिस्पॉन्स अलग है. And when we are doing IVF, we are meeting you for the first time. So first cycle we start on general basis. We see how your body responds. We see how your system respond. What is the quality of egg? What is the quality of sperm? And how the embryos are forming. If all is well, you might get pregnant in first attempt. Around 40% people get pregnant in first attempt. But if it doesn't work in first attempt, it's nothing to be worried about, because we learn from that cycle. And now in next cycle, we can do much, much better. Around 80% of the patient get pregnant after 2 or 3 attempts. So IVF may or may not work in first attempt. We will have to analyze your system. You may get pregnant in first attempt. You might need another attempt. But eventually it may work for the best. मैम, वी हैव हर्ड अबाउट कि मल्टीपल आईवीएफ होते हैं, के केसेस होते हैं, तो ये मल्टीपल आईवीएफ के तरीके कौन कौन से हैं? खाली आईवीएफ, ओनली आईवीएफ जो नाम सुनते हैं, इसके अंदर भी सब कैटेगरीज होती हैं, उनको कैटेगरीज को आप इलाबोरेट करके अगर फिर हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि हम लैब के अंदर एम्ब्रियोज बना रहे हैं। अब ये लैब के अंदर एम्ब्रियोज हम कई तरीके से बना सकते हैं। वी नीड टू रिमेंबर द नॉर्मल फिजियोलॉजी हियर। नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है कि पीरियड के सेकेंड डे पे अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल की बात कर रहे हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, तो दोनों ओवरीज में अराउंड 5-6 एग्स रहते हैं। ठीक है, so we can do a natural cycle IVF where her own egg is forming. We are just taking that out, creating an embryo and putting it back in the same cycle. We can do minimal stimulation, means we give very low dose of hormones and then take whatever best number of eggs we get, 4, 5, we take it out, we create an embryo and put it back. We can do a conventional IVF where we give high doses of medicine injection, try to get maximum number of eggs, maximum number of embryos, and then put the embryos back either in the same cycle or in the next cycle. We can do pooling cycles where if we want to have more embryos, we can stimulate multiple times, collect embryos, and once we have sufficient, then we do transfers later on. We can go for donor cycle, we can go for surrogacy, we can go for ICSI cycles, we can go for TC or micro TISA if there is a male factor. So IVF का मतलब सिर्फ ये है कि बाहर एग निकाला, एम्ब्रियो बनाया और उसको अंदर डाला। इक्सी का मतलब ये है कि एग लिया, उसमें स्पर्म डाला, एम्ब्रियो बनाया और वापस ट्रांसफर किया। ठीक है, नंबर ऑफ एग्स, यहाँ 2 बातें आपको याद रखना जरूरी है। Highest number of eggs gives you higher number of embryos and increases your chances of success. But अगर आपके ज्यादा eggs है ही नहीं, अगर आपकी ovaries में ज्यादा eggs हैं ही नहीं, तो conventional IVF may not be the right thing for you because high dose of stimulation may not give you the good quality embryos. So in that case, if you don't have more eggs, even a natural or minimal stimulation IVF is the best thing for you. मैम, कई केसेस में लोगों को डर लगता है, इज इट अ मिथ और इज इट ट्रू कि अगर हम आईवीएफ के लिए जाते हैं तो हमें या तो ट्विन प्रेगनेंसी होगी या ट्रिपलेट्स होंगे। दिमाग में लोगों के ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है एंड दे वांट टू अवॉइड, बिकॉज अभी करंट सिनेरियो में देखें तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू चीज़ें, एज इन हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। पीपल वांट टू हैव वन बेबी नाउअडेज। सो आई विल टेल यू वन थिंग हियर, ट्विन और ट्रिपलेट, we consider that high risk pregnancy
We don't say that it is a normal pregnancy. We don't say that it is a low risk pregnancy. It's a high risk pregnancy. Basically, the number of pregnancy, the multiple pregnancy, it depends upon the number of embryos we are putting. So if we put 2 or more embryos, there is a possibility of getting a higher order pregnancy. But if we are putting a single embryo, there is a higher chance that it will result in a single pregnancy. For me, single embryo transfer is the norm. We don't do more than 2 embryos unless until the patient requests to do so. Single embryo transfer से आपका बेबी को प्रॉपर चांस मिलता है ग्रो करने का, पूरे टाइम पे डिलीवरी होती है, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं होती हैं, और सबसे बड़ी बात, ऑल गुड सेंटर्स डू सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर. सो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, अ ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर इज द नॉर्म एट आवर सेंटर. मैम कई केसेस में लोगों से सुनने को मिलता है हु आर नॉट वेल रेड रादर, बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म नहीं होते हैं, उनको लगता है कि आईवीएफ के जो बेबीज होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगी. पहली बात तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है, तभी तो आपको आईवीएफ पे जाना पड़ रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है. दैट प्रॉब्लम कैन बी जेनेटिक, दैट प्रॉब्लम कैन बी एबनॉर्मलिटी इन द यूट्रस, एंड हम उसको सपोर्ट करके आगे हार्मोन्स के साथ बढ़ा के आगे ले जा रहे हैं. तो एज इट इज टू बिगिन विद वी हैड सम इशू, दैट्स व्हाई वी नीड टू गो फॉर आईवीएफ. अगर सपोज नॉर्मली आप कंसीव कर जाते तो आईवीएफ की जरूरत ही क्यों होती. तो पहले ये अगर सपोज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल. सपोज यू आर ग्रोइंग 2 प्लांट्स इन 2 पॉट्स. एक पॉट के अंदर पौधा नहीं उग पा रहा है और आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ट्राई देना पड़ रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर ना. That's why it is going. So it's not that IVF causes the problem, it's just that there is some problem, and that's why we have more chances of detecting it later. This is one thing. Second thing, now there is another factor that yes, honestly speaking, their lab conditions, the stimulation, the dose of injection and other things also impact. There is an effect on epigenetics which as of now we might not be sure of. Okay, but these patients are kept under strict observation. हो सकता है कि नॉर्मल कंसीविंग हो और आपको पता भी ना चले कि आपकी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी या मिस्ड अबॉर्शन हो गया, जबकि आईवीएफ के अंदर हर चीज मॉनिटर होती है और अर्ली डिटेक्शन हो जाता है. सो मिनिमल स्टिमुलेशन करें, बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रग्स यूज करें, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन ना करें, तो आई कैन से फेयरली that there is no difference between natural conception and IVF. But yes, if too many interventions are needed, or there are too, like higher old age people trying too many cycles with too many hormones or something, so we need to keep these patients under strict observation because we might detect something. सो अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो आईवीएफ का एक बेबी एक नॉर्मल बेबी की तरह ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. ज्यादातर केसेस में हाँ, बट इसके बहुत सारे पीछे के कारण हैं जिनको हर केस अलग है. सो आपके केस में पर्टिकुलर क्या सिचुएशन है ये देखना बहुत जरूरी है. कई बार लोग बोलते हैं कि आईवीएफ के टाइम जो वुमेन इंजेक्शंस लेती हैं, सो दे हार्म देयर बॉडी इन अ लॉन्ग टर्म. कई बार वो ऐसे मिथ आते हैं कि उनको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे कहा जाता है. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, दुनिया की कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिसमें साइड इफेक्ट्स ना हो. तो साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. जब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, सबसे पहली बात तो ये कि हम हार्मोन्स जो देते हैं उसका एक कट ऑफ सेट किया गया है जो कि 600 IU है नॉर्मली डेली डोज, और जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 150 to 225 है मिनिमल स्टिमुलेशन. साइड इफेक्ट्स को बेसिकली हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. एक है इमीडिएट साइड इफेक्ट जो आपके ड्यूरिंग स्टिमुलेशन होते हैं, एक है साइड इफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेस और प्रोसीजर, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स. सो ये बात कहना कि कुछ कैंसर या कुछ हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो रिसर्च और स्टडीज विच सेज दैट बहुत ज़्यादा हार्मोन्स यूज़ करने की वजह से कैंसर होता है, क्योंकि हम जितनी मात्रा अलाउड है उससे काफ़ी कम मात्रा में हम इंजेक्शन हार्मोन्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. सेकेंड थिंग इज ड्यूरिंग प्रोसेस और प्रोसीजर, जैसे आप एनेस्थीसिया देते हैं, पिकअप कराते हैं, ओटी में जाते हैं. हालांकि ये बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हम एक छोटी सी निडल डाल के एग्स को एस्पिरेट कर रहे हैं. आई वुड से इट इज एज सिंपल एज गिविंग अ ब्लड सैंपल. I have done cases where we have not given any anesthesia and the pickup is done without giving any anesthesia. But still, because females are little concerned about their genitals,
little amount of propofol where you are sleeping for 2 to 3 minutes is more than enough. हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आपको इंजेक्शन लग रहे हैं तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। किस तरीके से? भारीपन लग सकता है, आपको हेवीनेस लग सकता है, खाना ना खाने का मन कर सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग की फीलिंग आ सकती है, थोड़ा सा नॉजिया जैसा लग सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये साइड इफेक्ट्स टेम्परेरी हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये साइड इफेक्ट्स बिकॉज ओवरीज आर स्टिमुलेटिंग, यू आर फुल ऑफ हॉर्मोन्स। सो साइड इफेक्ट्स इंजेक्शन की वजह से नहीं है, वो जो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वजह से हैं। एंड दे आर मोस्टली सीन इन द लास्ट 2 to 3 days ऑफ योर स्टिमुलेशन फेज। जब एग निकल जाते हैं ये साइड इफेक्ट्स डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेशन ऑल्सो आप इन साइड इफेक्ट्स को कवर करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि नंबर 1, स्टिमुलेशन के 3 महीने पहले से हेल्दी खाना शुरू कर सकते हो, एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो, स्मोकिंग बंद कर सकते हो, ड्रिंकिंग बंद कर सकते हो। नंबर 2, स्लीप प्रॉपर ले सकते हो। नंबर 3, पानी अच्छा पी सकते हो। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हो तो आपको हार्मोन्स का साइड इफेक्ट उतना नहीं आता है। नंबर 4, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको पता है, उसके बारे में पढ़िए, आपके लिए क्या ऑप्टिमम डोज है वो देखिए, अपने डॉक्टर को बोलिए कि आपको एनफ स्टिमुलेशन, आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट ना करें। सबसे बड़ी बात, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 4 ब्लास्टोसिस्ट चाहिए तो आपको हाई डोज इंजेक्शन देने की बजाय मैं वो 4 एक साइकिल में लेने की बजाय 2 साइकिल में ले सकती हूँ। I'll give you minimal stimulation, do 2 cycles of pickup and have those blastocysts. So be prepared for what is needed and then try to do things which are meditation, yoga, exercise, taking proper diet, stopping smoking and alcoholing, drinking enough water. All these things can detoxify your body and the side effects will be minimal. मैम, जस्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है, मेरा आईवीएफ चल रहा है, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हैवी वेट्स नहीं उठाने चाहिए, अभी तो उनका पिकअप भी नहीं हुआ एंड दे हैव स्टॉप डूइंग ऑल दीज काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस, क्या ये सही है? So best form of exercise is walking, जो आप कभी भी कैसे भी कहीं पे भी कर सकते हो। इम्पल सिंगल एक स्टेप पे पॉइंट पे खड़े होके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो। जो नॉर्मल स्टिमुलेशन फेज में एक्सरसाइज करने की कोई मनाही नहीं होती, आप नॉर्मल चीजें कर सकते हो। बट हाँ, जो लास्ट के 2 से 3 दिन होते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा देखो, क्योंकि ओवरी स्टिमुलेटेड हैं, इट्स लाइक अ फुटबॉल, इट्स लाइक बिग बॉल इनसाइड, मल्टीपल फॉलिकल्स आर देयर, तो हम नहीं चाहते कि कोई टॉर्जन या ट्विस्ट हो। सो बिल्कुल लेटर पार्ट ऑफ स्टिमुलेशन में जब आपकी ओवरीज बहुत स्टिमुलेटेड हैं तब आप उसको भारी काम को, बहुत हैवी वजन उठाने को या उस चीज को अवॉइड कर सकते हो। बट अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट मे बी राइट फॉर अ पर्सन हु हैज अराउंड 30 follicles, इट मे नॉट बी करेक्ट फॉर अ पर्सन हु हैज ओनली 2 follicles. सो आपके लिए क्या जरूरी है ये अपने डॉक्टर से जानना बहुत जरूरी है। मैम, जैसे कि आईवीएफ की बात करते हैं तो जैसे जो इंजेक्शंस चलते हैं, कई केसेस में ये इंजेक्शंस 9 मंथ्स तक चलते हैं। इज इट वैलिड फॉर अ लेडी टू गेट injected for 9 months? So it's like, honestly speaking, there is a little bit of exaggeration of that. So 9 महीने तक नहीं चलते हैं, बट हाँ, अगर आपका कोई ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, प्रोजेस्ट्रॉन की कमी है, तो ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको वो प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट 2-3 महीने तक दें। लेकिन एक बार 3 months हो गए और आपका प्लासेंटा फॉर्म हो गया तो वो प्रॉपर प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, फिर हॉर्मोन्स की जरूरत नहीं होती। आई थिंक देयर वुड बी अ एक्सेप्शनल केस वेयर द इंजेक्शन लास्टेड फॉर 9 months, जिसमें कोई इम्यून फैक्टर रहा होगा या कोई और प्रोजेस्ट्रॉन की बहुत सिवियर डेफिशिएंसी रही होगी। अदरवाइज 9 months तक नहीं चलते हैं। हम जो करते हैं, हम नेचुरल साइकिल आईवीएफ करते हैं। उस नेचुरल साइकिल आईवीएफ के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि आपका जो एक एग बन रहा है वही हॉर्मोन्स को सपोर्ट करे और बाद में भी, ट्रांसफर के बाद भी हमें मेडिसिन इंजेक्शन ना देने पड़े। बट अगेन ईच केस इज डिफरेंट एंड यू नीड टू टॉक टू योर डॉक्टर व्हाट इज द राइट थिंग फॉर यू। कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन मैम, आईवीएफ किसी कपल को नहीं हो रहा है कोई बेबी, तो क्या आईवीएफ इज द ओनली सोल्यूशन? नहीं, भी है हमारे पास? बहुत सारे, कई बार तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ प्रेगनेंसी हो जाती है। आजकल हम इतना सारा पीसीओएस देखते हैं, इतना सारा हार्मोन इम्बैलेंस देखते हैं, लोग ठीक से खाते नहीं हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं एंड देन दे से कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही। सी, आप एक छोटी सी बात सोचो कि आईवीएफ का ये जो इंसिडेंस बढ़ा है ये लास्ट 25 से 30 सालों में बढ़ा है। और ये 25 से 30 साल में क्या बढ़ा है? लाइफस्टाइल चेंजेस।
लोगों ने बिल्कुल बैठना शुरू कर दिया है, सारा दिन रात में 2 बजे खाना खा रहे हैं, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. So there are so many cases where you just change your lifestyle and you may get pregnant with that. But the only thing you need is patience. Walk, yoga, exercise, proper diet, sleep, and patience. It will work for you. Ma'am, now I would like to have a takeaway message for all my viewers. जनरली क्या एज ग्रुप होना चाहिए जिसमें यू शुड ट्राई इनिशियली एंड फिर आईवीएफ की तरफ हम प्रोसीड करें? बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आईवीएफ हैज बिकम वेरी कॉमन नाउअडेज अगर हम बात करें. तो इसका एक सिंपल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है. सो इफ यू आर मोर देन 35 years of age and you have tried for 6 months, you should go and meet your doctor. If you are less than 35 years of age, you have tried for 1 year, go and meet your doctor. Again, इसकी एक और इशू ये है कि आजकल एज ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, एज ऑफ मैरिज बढ़ती जा रही है, एज ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ती जा रही है, लोग देर से शादी कर रहे हैं, देर से बच्चा कर रहे हैं. सो यू हैव now this generation, I'm very proud of that, you know, this generation is so clear. हमको पहले पता ही नहीं होता था कि हमको करना क्या है, but this generation has so much of clarity about what they want in life. So honestly speaking, if you don't want to have a child right now, or you are not married, or you are not have a right partner, or you are not sure that whether you want to have a child or not, at least secure your future fertility. Go and get a fertility assessment done. My take home message to every female is that you should get your fertility assessment done. You should know present status kya hai, and then a valid cautious decision you should make. There is no harm in not having a child also, but ये नहीं होना चाहिए कि अभी आज नहीं चाहिए, 5 साल बाद जब नहीं कर सकते तब चाहिए, तब स्ट्रगल कर रहे हैं. So what you do is that get a fertility assessment done, and if you are not in the right time frame or you don't have the partner, freeze your eggs. If you want to have a child, or you are not sure whether you want to have a child, or you just want to simply go and see the world, get the fertility assessment done, see where you stand, preserve your future fertility, and then try to, if all is well, you are married, then the first child should be by 28 to 29 years of age. If not, maybe by 30. Then the second should be by 32. So ideally speaking, before 35 आपका 2 babies हो जाना चाहिए. After 35 you will have many problems in conceiving and unnecessarily दिक्कतें बढ़ेंगी. It's not true for everyone. It's just a incidence. So incidence of infertility increases after 35 years of age. So whatever you want to do, have a child, preserve your fertility, or preserve your embryos. Do it before 34-35 years of age. So this is what you are saying कि 35 years से पहले अगर आईवीएफ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उसको भी 35 years से पहले ही करा लें. हाँ, अगर जरूरत है, आपकी शादी को 6 महीने हुए लेकिन आपको पता है आपकी ट्यूब्स ब्लॉक है, तो क्यों वेट करना है? फिर जितनी जल्दी होगा उतना एग की क्वालिटी अच्छी है ना. सो माई सिंपल टेक होम दिस मैसेज इज that if you are less than 35 years of age, you are married and tried for having baby for 1 year, go and see your doctor. If you are more than 35 years of age, you have tried for 6 months, go and meet your doctor. That's it. Thank you so much, ma'am, for such a Most fruitful welcome. information. Most Thank welcome. you. Thank you so much.